پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جہاں سینیٹر فیصل جاوید اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے اپوزیشن نے پہلے دن سے پرائم منسٹر عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ پرائم منسٹر عمران خان جب اپنا پہلا خطاب کر رہے تھے پارلیمنٹ سے، اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اور پہلے 5 منٹ میں کہہ دیا کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے۔ پہلے 5 منٹ میں ہی کہہ دیا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے بات کی کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، تو وہاں سے انہوں نے بلیک میلنگ شروع کی کہ کسی طرح سے ان کو وہ NRO مل جائے۔ اس کے لیے اسمبلی میں شور شرابہ کیا۔ اس کے بعد جب کشمیر کاز پوری دنیا میں اٹھا ہوا تھا، عمران خان صاحب کی زبردست ایفرٹ سے پوری دنیا میں کشمیر کا مقدمہ انٹرنیشنلائز ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے جو جوائنٹ سیشن ہوا کشمیر کے اوپر، وہاں پہ ہم نے ان کو بلایا، اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد کنٹینر لے کر پہنچ کے کشمیر کاز کو بیک برنر پہ ڈال دیا اور اپنے آپ کو اور اپنی کرپشن بچانے کی جو مہم تھی اس کو آگے کر دیا۔ اس کے بعد کرونا فیز 1 چل رہا تھا، اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی۔ پھر فیٹف کے اوپر جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے، وہاں پر انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ لے کر کے آئے یہ NRO، یہ نیب کی 38 میں سے 34 شکیں وہ کہتے ہیں چینج کر دیں، اور اس پہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز ہے۔ یہ لے کر کے آئے کہ ہمیں آپ اگر یہ دیں گے تو ہم فیٹف میں آپ کو ووٹ دیں گے۔ اور اب آپ کے سامنے ہے کہ PDM انہوں نے بنائی، اور PDM کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر ڈیمانڈ کر رہے ہیں NRO کو، مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ان کو یہ NRO نہیں دیں گے۔ یہ NRO ہے کیا؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی طرف سے پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں نیب آرڈیننس میں کہ 38 میں سے 34 شکیں جو ہیں وہ آپ بدل دیں۔ اس میں چیدہ جو ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 99 سے پہلے کے جتنے کیسز ہیں، 1985 سے لے کے 1999 تک کے بیچ کے جتنے کیسز ہیں وہ آپ معاف کر دیں۔ وہ چھانگا مانگا کی سیاست، وہ غیر جماعتی الیکشن جو 85 کا تھا، اس کے بعد جتنے قرضے معاف کرائے گئے، وہ پورا دور 85 سے لے کے 99 تک جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کے جو ادوار رہے ہیں وہ سب حلال ہو جائے۔ وہ غیر قانونی اثاثہ جات بنانے کے کیسز، وہ ساری چیزیں وہ معاف ہو جائیں۔ ایک چیز تو انہوں نے یہ کہا کہ 99 سے پہلے کے سارے کیسز معاف ہو جائیں۔ اچھا، اگر ہم اس میں بینیفیشری دیکھیں تو ان میں بڑی لمبی فہرست ہے جو اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اس میں ہے جی نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، خواجہ آصف، اسحاق ڈار، خاقان عباسی، خورشید شاہ، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، احسن اقبال، یہ سارے کے سارے اس NRO کے بینیفیشری نکلتے ہیں۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ 99 کروڑ 99,999 روپے تک کی کرپشن جو ہے وہ ہمیں کرنے دیں۔ اس میں بھی رمضان شوگر ملز کا کیس ہے، رانا ثناء اللہ کا کیس ہے، خواجہ آصف کا کیس ہے، اور جاوید لطیف کا بھی کیس اس میں آتا ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو ٹچ نہ کرے، پبلک آفس ہولڈر کو اجازت ہو منی لانڈرنگ کی، نیب اس کو کچھ نہ کہہ سکے۔ اس میں بھی شہباز شریف کا TT کیس ہے، آصف زرداری کا فیک اکاؤنٹ کیس ہے، چودھری شوگر ملز ہے، خواجہ آصف کا ایسٹس والا کیس ہے، اور فریال تارپور صاحبہ کا بھی اس میں کیس ہے۔ چوتھی چیز یہ کہتے ہیں کہ بے نامی کی تعریف جو ہے وہ بدل دی جائے، یعنی کہ رشوت چوری کا پیسہ آپ اپنے بیوی کے نام پہ کر دیں، جو ٹیکس پیئر ہوں ان کے نام پہ کر دیں، یا بچے جو 18 سال سے اوپر ہیں اور انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر جو بھی ہے اس کے نام کر دیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ اس میں سلمان شہباز کی نام جو بے نامی، یعنی کہ شہباز شریف کا جو کیس ہے TT کا وہ آتا ہے، انور مجید ان کا آتا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہتے ہیں کہ لمیٹیشن 5 سال کی۔ اور بھی چیدہ اس میں چیزیں ہیں، جس طرح کہ انٹرنیشنل کوئی ثبوت جو ہے وہ نیب کی طرف پیش نہ ہو سکے، بین الاقوامی کوئی ثبوت ہو، یعنی کہ لنڈن فلیٹس کلیئر ہو جائیں اور سرے محل کلیئر ہو جائے، کوئی بھی انٹرنیشنل جو ثبوت ہے وہ نیب کے سامنے پیش نہ ہو سکے۔ تو یہ مسودہ یہ وہ لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے چیدہ آپ کو نکات بنائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کسی طرح سے ان کو مسائلتی آرڈیننس ان کے ساتھ کر لیں، NRO ان کو دے دیں، ان کو ڈیل دے دیں۔ ماضی میں انہیں عادتیں پڑی ہوئی ہیں ڈیلے کرنے کی۔ جنرل مشرف سے
जब वो पावर में थे दोनों ने एनआरओ लिया, उससे पहले आपस में एक दूसरे को जब इनकी हुकूमतें रहीं एक दूसरे को रिलीफ देते रहे हैं, एनआरओ देते रहे हैं। अब है सामने इमरान खान साहब ने कहा है कि वो किसी सूरत इनको एनआरओ नहीं देंगे। अगली चीज है इस्तीफे। ये इस्तीफे नहीं है, ये लतीफे हैं। ये पहले ही कहा था, आज हम इन्हें चैलेंज करते हैं। नया साल शुरू होने वाला है, 31 दिसंबर से पहले आप इस्तीफे दे दें। असद कैसर साहब से बात हुई अभी, वो कलम लेके बैठे हुए हैं, वो फौरन इनके इस्तीफों पे साइन करेंगे ताकि नए साल का आगाज असेंबलियों से गंद साफ हो, असेंबलियों से गंद साफ हो। नया साल, हैप्पी न्यू ईयर जो है वो हम सबको फिर बोल सके ताकि ये लोग जो है असेंबलियों से निकले। इनके इस्तीफे मुकम्मल तौर पर लतीफे बन गए हैं। और यहां पे हम ये भी बताते चले कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन पे हम अपने वर्कर्स से, पीटीआई के वर्कर्स से भी कहेंगे कि उन पे तनकीद ना करें, उनको बुरा भला बिल्कुल ना कहें। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। वो हमारी हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज। जो हाल उन्होंने नून लीग का जिस स्पीड के साथ किया है, जिस स्पीड के साथ उन्होंने किया है, उसकी हमें मिसाल नहीं मिलती। तो हम उन्हें खास तौर पे खराज तहसीन पेश करते हैं। वेल डन मरियम, आपने बहुत जबरदस्त सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो हाल बिलावल ने पीपल्स पार्टी का किया है, वही हाल मरियम ने नून लीग का कर दिया है। ये वही मरियम है जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और आपको याद है जो सुप्रीम कोर्ट पे पूरा मुकदमा चला, तो वो जो लंदन में फ्लैट्स हैं, दुनिया की सबसे महंगी जगह लंदन की सबसे महंगी जगह मेफेयर के अंदर जो फ्लैट्स हैं, उनकी असल मालिका हैं मरियम उनकी असल मालिका हैं। तो ये सब लोगों के सामने ये चीजें। अब कहते हैं जी डायलॉग के लिए गवर्नमेंट पहले दिन से तैयार है। आए पब्लिक इंटरेस्ट की चीजों पे डायलॉग करें, पब्लिक इंटरेस्ट की जो कानून साजी हो रही है उस पे डायलॉग करें। हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर इनको दावत देते हैं, हमने कोरोना के ऊपर इनको कमेटी के अंदर कई दफा बुलाया। हम आज भी इन्हें कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट की कानून साजी पे जरूर आए और डायलॉग करें, लेकिन साथ अपने ये मत लेकर आए ना, ये आपको नहीं मिलेगा। ये एनआरओ जो मांग रहे हैं इमरान खान साहब से, ये नहीं मिलेगा। माइनस दिस हम रेडी हैं इनके साथ किसी किस्म के भी डायलॉग करने के लिए। लेकिन हर मौके पर ये इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इमरान खान इनको बस ये एनआरओ दे दें। इमरान खान साहब ने कहा मेरी हुकूमत तो छोटी चीज है, मेरी जान भी चली जाए मैं इन चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। एनआरओ नहीं देंगे इमरान खान। इसके अलावा हम तैयार हैं डायलॉग के लिए। इनका जो इस्तीफों वाले जो ड्रॉप सीन पूरा हुआ है, वो इस तरह हुआ है कि जब इन्होंने लोगों को इस्तीफों का कहा, इनके बेशतर अरकान पार्लियामेंट, पीपल्स पार्टी के भी और पीएमएलएन के भी, सब ने कहा भाई हम क्यों इस्तीफे दें, हम आपकी चोरी बचाने के लिए क्यों अपनी नशिस्तें छोड़ें। क्योंकि ये सारी जो मुहिम चल रही है, ये कुछ लोगों की चोरी बचाने के लिए चल रही है। और जाहिर है पब्लिक तो चोरी बचाने वालों के साथ नहीं निकलती। पब्लिक क्यों निकलेगी? तो जब ये फ्लॉप हुए, इनके सारे जलसे फ्लॉप हुए और कहते रहे कि मीनार पाकिस्तान फैसला करेगा, लाहौर फैसला करेगा, तो लाहौर ने तो अपना फैसला कर दिया, लाहौर ने आपको रद्द कर दिया। तो उसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि ना अपने लोग इस्तीफे देने को तैयार हैं, इनकी चोरी बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। तो इन्होंने फिर ये बात अपनी वापस ली और अब ये कह रहे हैं लॉन्ग मार्च, और कह रहे हैं जी नवाज शरीफ वापस आए। ऐसे फिर ना करने लगा ना, बिल्कुल ही आप जो मर्जी कर लें, लॉन्ग मार्च सो बिस्मिल्लाह। हम तो कहते हैं आप लॉन्ग मार्च करें, आप लॉन्ग मार्च करें। और ये रिपीट ब्रॉडकास्ट है, आपने पहले भी लॉन्ग मार्च किया, आपने क्या कर लिया? आप इधर कंटेनर लेकर के यहाँ सेल्फियां लिया, वापस चलेंगे। पब्लिक आपको रिजेक्ट कर चुकी है, ये मानना पड़ेगा आपको। आपने बैक टू बैक जलसे करके देख लिया, लोगों की जानों को खतरे में डाला। कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसमें जलसों की वजह से मजीद शिद्दत आई है। इनके जलसों की वजह से ज्यादा अमवात भी हुई हैं, ज्यादा इनके जलसों की वजह से कोरोना फैली है। जिस जगह इन्होंने जलसे किए हैं वहां पे ज्यादा कोरोना ऊपर गया है। और अब ये लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च आप कर भी लेंगे तो क्या होगा? आपके ये सारे जो कंडे हैं ये सब आप पहले कर चुके हैं, वो कहते हैं डेजवू। तो ये सब कुछ पहले हो चुका है, अब भी करके देख लें। जी आया नू सो बिस्मिल्लाह,
कुछ भी नहीं होगा। आप जिस चीज के बतलाशी हैं वो सिर्फ है NRO। आप सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए आपने लोगों की जानों को खतरे में डाला है। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब बड़ा क्लियर कट पोजीशन है पहले दिन से उनकी कि किसी सूरत भी वो आपको NRO नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर ज़ीशान थोड़ा सा ऐड करेंगे फिर सवाल ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सुना सेनेटर फैसल जावेद साहब ने जो गुफ्तगू की है इस टाइम पे, तो हम यही समझते हैं कि देखिए जो इनकी तहरीक है वो तो नाकाम हो रही है और नाकाम हो गई है, और उसके दो मजमूई तौर पे बड़े वजूहात हैं। और सबसे पहली वजह ये है कि अब अवाम को जो है ये समझना वो शुरू हो गए हैं कि जो इमरान खान की पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ वो होती हैं जो कि सिर्फ आपके काम ना आए, अगले जो आपकी जनरेशन हैं उनके भी वो काम आए। और दूसरी बात यह है, उनको साथ साथ ये भी समझ आ गई है कि जो इनकी तहरीक है तो वो इस मुल्क के लिए नहीं है, हमारे कौम के लिए नहीं है, वो इनके ज़ाती मफादात हैं, उसके लिए ये अपना एक तहरीक चला रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर है मेरे ख्याल से इस टाइम पे, और यही दो बड़ी वजूहात है जिनकी वजह से इनकी तहरीक को आगे कोई राह नहीं मिल रही। और ये अपने बयानिया जो है तो ये हर 2 हफ्ते बाद चेंज हो जाता है, कोई और चीज़ ये लेकर आ जाते हैं। कभी कहते हैं इदारों के ऊपर हम अपना डाल देते हैं जो भी इन्होंने किया है, इसके अलावा इस्तीफों की बात करते हैं। तो इनके पास ऐसा कोई खास कोई बयानिया है नहीं। जैसे कि अगर खान साहब ने अपना कोई एक तहरीक इससे पहले चलाया तो उसमें बड़ा क्लियर उनका एक स्टांस था, और वो थे स्टेटस को के खिलाफ। इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि इस टाइम पे जो इकनॉमिक सिचुएशन, जो हमारी मईशत की सिचुएशन है, वो भी ये लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं जी कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है तो वो काफ़ी नीचे चली गई है। बेशक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट नीचे गई है कोरोना की वजह से, और वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि खित्ते में और भी ममालिक हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इस टाइम पे जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है वो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। आपकी पाकिस्तानी रुपी, हमारी करेंसी जो है वो दुनिया में सेकंड नंबर पे आ रही है ग्रोथ रेट में। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जितने भी इस टाइम पे जो करंट अकाउंट के सरप्लस है, तो वो भी उसमें बड़ी वजह जो है तो आपके रोशन डिजिटल अकाउंट जो कि स्टेट बैंक और की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, उसमें हमें काफ़ी डॉलर्स बाहर से आ रहे हैं। और ये पिछले सालों में नहीं था, क्योंकि पिछले सालों में पाकिस्तान में डॉलर ज़्यादा बाहर जाता था और पाकिस्तान में कम आता था। वो सिचुएशन अब मुख्तलिफ हो गई है, और इन चीज़ों की वजह से ही पाकिस्तान की करेंसी जो है वो ऊपर जा रही है। बल्कि 170 से डॉलर जो है वो अब 154 पे आ गया है, और भी इंशाल्लाह नीचे ही जाएगा। इससे क्या होगा, इसमें पाकिस्तान से जो अंदर बाहर से जो चीज़ें आती, इम्पोर्टेड चीज़ें, उनकी कीमतों में कमी आएगी, जिसमें पेट्रोल हो गया और बाकी ऐसी मेजर चीज़ें हैं। तो महंगाई में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। और मुझे लगता है कि यही कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। और मैं बस आखिर में यही कहूँ कि इनकी तहरीक जो है तो इसमें ऐसी कोई कामयाबी नहीं होगी। बड़े सवाल मेरा ये है कि जिस 34 नैब के कानून में तरमीम के हवाले से आपने बताया, इस पे 4 मरतबा शाह महमूद कुरैशी साहब का रिस्पॉन्स कर चुके हैं, 8 मरतबा शहजाद अकबर साहब कर चुके हैं, 15 मरतबा शबीर फराज साहब कर चुके हैं। तो हुकूमत इस चीज को और कुछ नहीं कहने के लिए हुकूमत के पास एक ही चीज को 1000 मरतबा दोहराया जा रहा है, इसका क्या फायदा है? और दूसरी बात, आपने कहा कि महंगाई में कमी होगी, वो कब कमी होगी? देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, जबरदस्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ था जब इमरान खान साहब पावर में आए, सारे इदारे तबाह थे,
कर्जे रिकॉर्ड इन्होंने 6,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा लेके गए थे। इन्होंने बात की डॉलर के अंदर आमदनी और खर्चों में नुकसान जो पाकिस्तान को करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 अरब डॉलर का था, वो पिछले 5 महीने में लगातार सरप्लस में गए, नफे में गए हम। एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ गई हैं। फैसलाबाद और सियालकोट, गुजरांवाला आप जाएं, आपको पता चलेगा जो हमारी इंडस्ट्री बहाल हुई है, 50,000 लूम्स पिछली बहाल की हैं, 30,000 लूम्स नई लग गई हैं। लेबर जो है वो शॉर्ट पड़ गई है वहां पे। कारोबार उठ के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस तेजी से अब ऊपर जा रही हैं। हर लिहाज से पाकिस्तान के जबरदस्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। खासतौर पर कोरोना के अंदर पूरी दुनिया ने तारीफ की है कि इमरान खान की जबरदस्त हिकमत अमली से न सिर्फ कोरोना के ऊपर पाकिस्तान ने काबू पाया बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं कमाल के हैं। बिल गेट्स ने कहा, WHO ने कहा, US के इकोनॉमिस्ट ने कहा, आज फिंच जो है, ब्लूमबर्ग जो है, मूडीज जो है, सारे आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी की तारीफ कर रहे हैं। आपने बड़ी चीजें पहले करनी है और फिर उसके असरात पब्लिक तक जाएंगे। और अब IMF की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में महंगाई नीचे जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं। आप याद रखिए, जिधर पाकिस्तान मिला इमरान खान को, कुछ जर्मनी या स्विट्जरलैंड की इकॉनमी नहीं मिली थी इस पाकिस्तान की, जिन्होंने अपनी बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई हैं, मुल्क को गरीब किया, अपने आप को अमीर किया है। इमरान खान ने ना कोई मिल लगानी है, ना इमरान खान ने कोई कारोबार करना है, ना बैरून मुल्क असासे बनाने, जो कर रहे हैं इस मुल्क के लिए करना है। एक चीज। दूसरी चीज, NRO, ये ना मांगे ना, हम नहीं बताएंगे। फिर ये बार बार मांगते हैं, इसलिए हम बार बार बताते हैं। और बार बार ये भी बताना जरूरी है कि NRO है क्या। इसमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ के साथ इन्होंने NRO की थी कि एक टाइम फ्रेम के अंदर इनके सारे केसेस, जी मिट्टी पाओ, पहले जो हुआ वो हुआ, आगे चले। क्यों भाई? आपने मुल्क को लूटा, आपको छोड़ दे, आपने करप्शन किया, आपको छोड़ दे। और ये सारे केसेस इनके दौर के बने हुए हैं, इनके अदवार के बने हुए हैं केसेस। इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, इनको जाके इदारों के सामने पेश होना चाहिए, अपने सबूत देने चाहिए। इमरान खान साहब पे जब इन्होंने केस बनाया पैनामा के बाद आवाज उठाने पर, इमरान खान ने क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया? इमरान खान 1 साल तक मुकदमा चलता रहा, जाते रहे, 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी। उस कमाई पे जो बाहर की कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, एक एक पाई पाकिस्तान वतन अजीज लेकर के आए, उस पर भी इमरान खान ने एक एक सबूत दिया और बैंकिंग चैनल की ट्रांजैक्शन सब कुछ दिखाया और अदालत से सुरखरू निकले। बदले में इन्होंने क्या दिखाया? एक वो कतरी खत वो जाली, एक वो ट्रस्ट डीड वो जाली, और निकल आई मरियम उन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ओनर। और आज की तारीख तक एक पेपर वो नहीं दिखा सके। तो जब केसेस हों, आप अदारों पे हमला नहीं करते, आप जाके अपने जवाब देते हैं। हम इन्हें ये कहते हैं कि आप बजाय इसके कि NRO ले, आप अपने मुकदमात का सामना करें। इसलिए ये जरूरी है लोगों को बताना, बार बार बताना, बार बार हम बताते रहेंगे कि बार बार बताना जरूरी है कि ये NRO है क्या और इस NRO की डिटेल्स क्या है, इसलिए जरूरी है। वैसे भाई NRO आपका और वज़ीर आज़म साहब का तकिया कलाम बन चुका है, लेकिन इस मुल्क का ये भी रिकॉर्ड है कि NRO कभी मिला तो वो पिंडी से मिला। क्या आपकी हुकूमत इतनी ताकतवर है कि पिंडी के बजाय जिस तरह हमारा NRO देगा? NRO हमेशा, आप अगर NRO की चेक करें, चीफ एग्जीक्यूटिव देता है NRO। NRO कहां से मिलता? जनरल मुशर्रफ थे, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो NRO दे सकते थे, उन्होंने NRO दिया भी। हुकूमत NRO देती है, हुकूमत को नहीं दिया जाता। ये जो अपोजिशन वाले कहते हैं ना, हम आपको NRO नहीं देंगे, वो आप कौन होते हो NRO देने वाले? आपको तो ज्यादा पता है NRO कौन देता है। आप अपोजिशन वाले तो NRO के आदी हैं, आपकी तो हैबिट है NRO लेना। आपने माजी में एक दूसरे से NRO ली, जनरल मुशर्रफ से दोनों ने NRO लिया हुआ है। तो इन्हें नहीं पता कि NRO हमेशा हुकूमत देती है, हुकूमत लेती नहीं होती NRO। अगर इमरान खान NRO नहीं दे सकते तो ये फिर मांगते क्यों हैं? फिर ये क्यों लेकर के आए हैं? अगर इमरान खान नहीं दे सकते तो ये इन्होंने लिख कर दिया है कि हमको आप हमारे ये केसेस माफ करें। ये सारे केसेस जो इनके हैं, चौधरी शुगर मिल, अल अजीजिया, एवन फील्ड अपार्टमेंट, सरे महल, ये सारे केसेस आप माफ करें, तो यही तो NRO है। खान साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर किसी ने इनको NRO दिया तो वो मुल्क के साथ अच्छा नहीं करेगा? वो किसी कौन है? इमरान खान ने क्या, कोई भी हुकूमत जब NRO देती है, जनरल मुशर्रफ ने, जब जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार खत्म हुआ, उन्होंने NRO दी, उसके 1 या 1.5 महीने के बाद उनका टेलीविजन पे इंटरव्यू है, उन्होंने खुद कहा कि मैंने सबसे बड़ी जो गलती की है वो ये NRO वाली की है। तो इमरान खान साहब ने कहा कोई भी हुकूमत हो कभी भी NRO नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, सेनेटर फैसल जावेद की सेनेटर ज़ीशान के हमरा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे थे।